everyone. May I request you to all please rise and accord a warm welcome to our honorable chief guest sir, and dignitaries. Thank you everyone. Please be seated. Ladies and gentlemen, a very good evening to one and all. It gives me immense pleasure to welcome you all to the fourth convocation ceremony as e-convocation due to pandemic COVID-19 being held at Pratap University, Jaipur today on September 29, 2020. This is Dr. Avidha Kulshrestha, Assistant Professor from the Department of Chemistry. Today we are honored to have Shri Jagat Prakash Nadda ji, National President, Bharatiya Janata Party as the chief guest of the e-convocation. We are fortunate that Shri Nadda ji has given us his valuable time from his very busy schedule, especially during the current pandemic and keeping in the view of impending state elections. Today, we are here to celebrate the accomplishment and academic achievement of our students. This is a much awaited event in every student's life, as it gives the return to the efforts put in by them throughout their academic endeavor. It gives a sense of achievement and a sense of responsibility towards fulfilling further commitments. Let's begin this auspicious day with the traditional lamp lighting ceremony as a tribute to Ma Saraswati, the goddess of knowledge, and the great Indian warrior Maharana Pratap, with whose name our esteemed Pratap University is entitled. So now I invite Honorable Chief Guest and the other dignitaries seated on the dais to kindly invoke the Almighty. Ladies and gentlemen, may I request you to all please rise for the invocation. Thank you everyone. Please be seated. Now please join me in giving our guests the best of cordial welcome. For that, I would request Ms. Swati Singhania, Assistant Professor in the Department of Law, to present the Holy Tulsi plant to Honorable Chief Guest. Okay. We welcome you, sir.
I would also like to welcome Honorable Chancellor Sir Mr. Shailendra Bhadoria ji. For that, I would request Dr. Satish Pandey, HOD in Computer Science Department, to present a floral bouquet to welcome Sir. Okay. I would also like to welcome Mrs. Surbhi Bhadoria ji, Honorable Secretary and Trustee of Pratap University. For that, I would request Ms. Poonam Sani, Assistant Professor from the Department of Electrical and Electronics Engineering, to present a floral bouquet to welcome ma'am. We extend our wholehearted welcome and present a bouquet of flowers to Professor and Dr. Abhay Kumar, Honorable Vice Chancellor, Pratap University. For that, I request Mr. Miraz Ahmad, Assistant Professor from the Department of Mechanical Engineering, to welcome Sir. We welcome you, sir. We welcome you, ma'am. Now I would request our Honorable Vice Chancellor, sir, for the declaration of opening the convocation ceremony. Honorable Chief Guest and Honorable Chancellor, sir, may I, with your permission, declare the convocation open? With the permission of Honorable Chief Guest and Honorable Chancellor, sir, I declare the convocation open. Now I would request Vice Chancellor, sir, to deliver the welcome address and present the university report. Honorable Chief Guest, Shri Jagat Prakash Nadda ji, National President, Bharatiya Janata Party, Honorable Chancellor, Mr. Shailendra Bhadoria ji, Honorable Secretary and Trustee, Mrs. Surbhi Bhadoria ji, members of Board of Management, Academic Council, distinguished guests, media persons, faculty and staff members, recipients of degree, their parents, and dear students. I extend a hearty welcome to you all at the e-convocation of Pratap University today. It is a historic occasion for all of us as we congregate today for the e-convocation of our university. To make this occasion more auspicious, we are honored to have with us Honorable Shri J.P. Nadda ji, National President, Bharatiya Janata Party, as the chief guest of today's function. Shri Nadda ji has had an illustrious political career. Since Shri Nadda ji has taken over as the National President of the Bharatiya Janata Party on 20th of January 2020, the party has scaled new heights under his leadership. Shri J.P. Nadda ji has very kindly accepted our request to spare his valuable time despite his busy schedule and other pressing commitments, and given his kind consent for delivering the convocation address. I am sure that all of us would be immensely benefited by the convocation address to be delivered by the Honorable Chief Guest. I am extremely happy to welcome Shri J.P. Nadda ji on behalf of Pratap University, Jaipur today. We are privileged to have with us our Honorable Chancellor, Mr. Shailendra Bhadoria ji, who has been contributing to the field of academics since the past 2 decades and has been successful in running Maharana Pratap Group of Institutions and Pratap University, Jaipur, with the vision to provide quality education to the youth. Adding feather to the cap, we feel privileged to welcome Mrs. Surbhi Bhadoria ji, Secretary and Trustee, Pratap University. Madam is the Director of Pratap International Schools and a renowned figure in the context of K-12 schools in the country. I would like my faculty and staff to join me in congratulating all the students who will be graduating from our university today. My message is, as you move forward, please reflect upon the many contributions that your family, your teachers, and your community have made to your lives. Congratulations once again. Now I present before you a report of co-curricular, extracurricular, and other accomplishments of our university. Today, 807 students are receiving their degrees. Presently, the university is having 24 schools and departments offering different courses in diverse streams of engineering, management, pharmacy, education, and many more. In addition to these, the university is also providing dual degree integrated programs in different faculties. The state-of-the-art research facilities
and modern amenities like well-stocked libraries along with project centers create a conducive environment for the teaching learning process. It would be apt to mention here that Pratap University caters not only to domestic students, but the presence of students from different countries across the globe makes its presence felt on the international horizon as well. We at Pratap University organize the Inter-University Mega Techno Cultural Fest Sifalari every year on the birthday of the greatest freedom fighter of India and epitome of courage, Maharana Pratap, from whom our university derives its name. During these years, various dignitaries have visited our university. Sadhvi Uma Bharti ji, currently Vice President BJP, had visited and unveiled the statue of late Mrs. Beena Singh ji, Vice Chairperson, Maharana Pratap Group of Institutions. She had laid the foundation stone of Institute of Medical Sciences and Research, Pratap University, and inaugurated the Center for Deen Dayal Upadhyay Kaushal Vikas Yojana. General V.K. Singh, as Chief of Army Staff, visited Pratap University, inaugurated the Guru Jambeshwar Boys Hostel, awarded our meritorious students, and guided our faculty, staff, and students to develop management skills during his address. Mr. R.V. Bala Subramaniam Iyer, Vice President Reliance Jio Infocom Limited, had also visited our campus and given fruitful tips on how to bridge the academia-industry divide. In fact, Reliance Jio and Pratap University have already entered into a memorandum of understanding for telecom projects, which includes training and hiring of students of the university. Shri Chetan Bhagat, renowned author and speaker, has also visited our university to guide our students. He motivated the student fraternity and guided them as to how to excel in life. At Pratap University, we are committed for quality education. I am proud to say that about 10,000 students have graduated from Pratap University in different streams and are well placed both within the country and abroad. Our distinguished alumni, Dr. Nishikant Dubey, is a member of parliament from Jharkhand. He had done his master's in management and completed his research work titled Emerging Issues of Rural Poverty in India, a Macro View, leading to the award of Doctor of Philosophy from Pratap University. In an effort to bring in better quality in its education and cross-cultural exposure, the university has joined hands with top global universities by entering into collaboration with them. Towards this end, the university has signed Memorandum of Understandings with the University of Donja Gorica UDG Montenegro, Europe, and University of District of Columbia, USA, the two international organizations of high repute for students, faculty exchange program, study abroad opportunities, holding joint international conferences, workshops, and other activities. Professor Ivan Jovetic from UDG Montenegro, Europe, has visited our university and guided our students. Our journey continues in this pandemic also. We took online classes of all the students and completed the syllabus well on time. In this context, I can proudly put forth that we have followed the university academic calendar made in pre-COVID-19 period for the session 2019-2020. We have studiously followed the aforesaid academic calendar even in the pandemic situation and are one of the first universities in India to have conducted the online exams in the month of May 2020 as per the academic calendar. Even the results have been declared on time so that students desirous of pursuing higher studies or going for a job may be enabled to do so. I must place on record that all the international students studying in our university have been provided results on time so that they could leave for their respective countries. Finally, to conclude, it is an exciting moment for those who are here to receive their degrees. Graduation is a major academic milestone in an individual's life. For the young graduates, the road ahead is long, but the journey promises to be exciting. I wish you all success in your endeavors. I quote Dr. Abdul Kalam ji, former President of India. We are all born with a divine fire in us. Our efforts should be to give wings to the fire and fill the world with the glow of its goodness. Thank you. Jai Hind, Jai Maharana Pratap. Thank you, sir.
Now I invite our Honorable Chancellor, Sir, Mr. Shailendra Bhadoria ji, to kindly deliver the presidential address and bless the august gathering. महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के 4th कन्वोकेशन के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मंच पर उपस्थित प्रताप विश्वविद्यालय की ट्रस्टी सुरभि भदौरिया जी, कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार जी, सभागार में उपस्थित अभिभावकगण, इस वर्ष जो छात्र विश्वविद्यालय से पास होकर विजय की पताका फहराने के लिए समाज में जाने वाले हैं, ऐसे छात्र छात्राएं, मीडिया बंधु और प्रताप विश्वविद्यालय के सभी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फैकल्टी मेंबर, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि जो साल भर कठिन परिश्रम हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे छात्र छात्राएं करते हैं, उसका दीक्षांत स्वरूप में उसका परिणाम उनको डिग्री के माध्यम से, उनको सम्मान के माध्यम से प्राप्त होता है। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, इस अवसर पर, इस पावन अवसर पर आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। ऐसी परिस्थितियां जहां पर विश्व महामारी का दौर चल रहा है, जहां पर इस संकट के समय में सारा देश एक साथ एकजुट होकर सरकार के साथ और समाज के साथ खड़ा हुआ है, ऐसे समय में आपने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारा निवेदन स्वीकार किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, जैसा कि कुलपति जी ने बताया कि लगभग 800 से अधिक छात्र अलग अलग विभिन्न डिसिप्लिन्स में इस वर्ष उत्तीर्ण करके अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे, या उनके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मैं उन सब छात्र छात्राओं को और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, यह दीक्षांत समारोह की अपनी एक अलग विशेषता है, क्योंकि इस वर्ष महाराणा प्रताप समूह, जिसकी स्थापना हम लोगों ने कानपुर की धरती से की थी सन 1995 में, और आज 25 वर्ष महाराणा प्रताप समूह को इस साल पूर्ण हो रहे हैं। और एक इस 25 साल के सफरनामे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके संज्ञान में मुख्य अतिथि जी लाना चाहूंगा। आज से 25 वर्ष पूर्व हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक, आपके भी मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इस संस्थान की नींव रखी गई थी, और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण और जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है महाराणा प्रताप समूह का कानपुर में, उसका उद्घाटन भी उनके कर कमलों द्वारा हुआ था। आज 25 वर्ष बाद मेरे मन में उनकी एक एक उस दिन की उद्बोधन की एक एक चीज मेरे कानों में गूंजती है। उसके कुछ अंश भी शेयर करना चाहूंगा माननीय मुख्य अतिथि जी, कि आदरणीय अटल जी ने उनके आशीर्वाद से आज 25 साल में यह संस्थान 10 बड़े कैंपसों के रूप में 4 प्रदेशों में अपनी शाखाओं में हर प्रकार के संस्थान, चाहे वह स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, सारे चीजों की स्थापना की। उन्होंने ये कहा था कि जिस व्यक्ति के नाम से, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के नाम से इस संस्थान को आपने स्थापित किया है, मेरा ये मन का विश्वास है कि आने वाले समय में ये एक बड़े वृक्ष के रूप में स्थापित होगा। ऐसा अटल जी 25 साल पहले अपने कार्यक्रम में कहे थे। वह सारी बातें मेरे मन में आज कानों में गूंज रही हैं। वो शब्द मुझे, मैं एक एक पल को याद कर रहा हूँ। उन्होंने महाराणा प्रताप के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुरूप था। उन्होंने उसमें इस विषय को बताया कि जिस प्रकार भगवान वनवास के लिए गए और वनवास के दौरान उन्होंने
कई कठिन विषय, कई कठिन परिस्थितियां आई, किंतु सब लोगों को साथ लेके, वानरों की सेना को साथ लेकर उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करी। इसी प्रकार राणा प्रताप के जीवन में समय आया था जहां पर उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा, उनके बच्चों को घास की रोटी प्राप्त नहीं हुई, वह भी बिल्ली छीन के ले गई। ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने जहां पे जो लोग थे, वहां के कबीले के वासी हो, भील हो, सबको एकत्र कर पुनः सेना संगठित करी और जाकर अकबर से युद्ध लड़ा। ऐसे पावन व्यक्ति से के हाथों से इस संस्था का शुरुआत हुई है और आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि इन 25 सालों में जो उन्होंने कहा उस पर खरे उतरने का महाराणा प्रताप समूह, उससे जुड़े दसियों हजार हमारे शिक्षक, हमारे लोग उसको साकार करने में दिन रात परिश्रम किए। आज यहाँ पे मुख्य अतिथि जो छात्र यहाँ पर उत्तीर्ण होकर जा रहे हैं, यह सिर्फ टेक्निकली और प्रोफेशनली सिर्फ साउंड नहीं है, इनके अंदर हमने प्रयास किया है कि महाराणा प्रताप के अंदर जो स्वाभिमान का भाव था वह इनके अंदर रहे, राष्ट्र चाहिए वो इनके अंदर रहे, राष्ट्र के निर्माण में इनका योगदान होना चाहिए, वो भावना इनके अंदर होनी चाहिए। शिक्षा तो हर जगह मिलती है, लेकिन राणा प्रताप प्रातः स्मरणीय राणा प्रताप से संस्थान में वह टेक्निकली, प्रोफेशनली और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर जा रहे हैं, यह मैं आश्वस्त रूप से कह सकता हूं। मुख्य अतिथि जी, शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी 25 वर्षों में संस्थान ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इस संस्थान के अलग अलग भवनों का उद्घाटन पूजनीय लोगों के द्वारा हुआ। पूजनीय स्वर्गीय सुदर्शन जी के द्वारा छात्रावास का उद्घाटन कानपुर में किया गया और ऐसे लगभग हर वर्ष में एक ऐसा 2 वर्ष में अवसर जरूर हम लोग को सौभाग्य प्राप्त होता है जब पूजनीय सर संचालक मोहन भागवत जी का प्रवास, संघ शिक्षा वर्ग, सेवा भारती के कार्य करने का हम लोग अवसर प्राप्त करते हैं और संस्थान पूरी इच्छा शक्ति के साथ उस कार्य को संपन्न करता है। हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी शिक्षा के साथ हमेशा इस बात का रहा कि हम उन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन जरूर करें जो हमको विरासत में मिला है। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, वर्तमान में संस्थान दिन दूनी रात चौगुनी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। विदेश लगभग 10-12 देशों से छात्र छात्राएं अलग अलग डिसिप्लिन्स में पढ़ाई कर रहे हैं और उत्तीर्ण होकर अपने देश में जा रहे हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहे हैं। यह सब उन महान लोगों के आशीर्वाद से हुआ है जिन्होंने संस्थान में समय समय पर आकर हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा मनोबल बढ़ाया है। और आप सब जब लोग हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो उससे महाराणा प्रताप समूह को बल मिलता है और आगे नए कीर्तिमान स्थापित करने की दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। अंत में मैं महाराणा प्रताप के जीवन का एक अंश बताकर और एक विषय बताकर इन जो पास हो रहे छात्र छात्राओं को कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। बात उस दौर की है जब राणा प्रताप जंगल में थे, उनके बच्चे जंगलों में विचर रहे थे और मान सिंह वहां से गुजरा। मान सिंह ने जब राणा प्रताप के बच्चों को देखा तो उसे मन में वे भाव आया कि मैं राणा के लिए कुछ करूं। उसने एक पत्र लिखा और बच्चों को दे दिया राणा प्रताप के और कहा जब राणा आए तो उनको यह पत्र दे देना। उस पत्र में उसने लिखा कि राणा, मैं तुम्हारे प्रति हमदर्दी रखता हूं और मैं सिर्फ तुमसे एक निवेदन करूंगा कि तुम एक बार चल के राणा प्रताप, तुम एक बार चलकर अकबर को सलाम कर दो। इसके बाद में तुम्हारा सारा जितना भी राज्य है, जितनी भी संपदा है, सब तुम्हें लौटा दी जाएगी। और मुझे इन बच्चों को इस स्थिति में देखकर बड़ा दयनीय, बड़ा दुख होता है। राणा प्रताप आए, राणा प्रताप ने उस पत्र को देखा और राणा प्रताप ने मान सिंह को जवाब लिखा और उस जवाब में पंक्तियों के माध्यम से राणा प्रताप ने लिखा और मैं पंक्तियों को बताता हूं कि उन्होंने लिखा कि मान सिंह के अंदर जो अभिमान था कि वो अकबर को कभी नहीं हरा सकते राणा प्रताप, इसलिए उन्होंने पंक्तियों के माध्यम से लिखा कि मान, या तो युद्ध में कुचलेंगे तुम्हारा मान, या तो युद्ध में कुचलेंगे तुम्हारा मान, या फिर प्रलय चंडिका का साथ साजेगी, या तो तुम्हारे से रहेंगे अकबर के गुलाम, या फिर मात्र बलबेदी पर हमारी कीर्ति विराजेगी।
या तो अरावली में गीदड़ों का होगा राज्य, या तो अरावली में गीदड़ों का होगा राज्य, या फिर सिंह साबुकों की मंडली विराजेगी, या तो तेरी चमकेगी अकबर जलाल की, या फिर किले पर टाप चेतक की बाजेगी। लड़ाई राज्य की नहीं, लड़ाई स्वराज्य की थी। लड़ाई अभिमान की नहीं, लड़ाई स्वाभिमान की थी। इस स्वाभिमान के साथ आज ये जो छात्र 800 आज उत्तीर्ण करके जा रहे हैं, या स्वाभिमान लेके जाएं या राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव लेके जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः छात्र छात्राओं को, उनके माता पिता को और अपने आदरणीय मुख्य अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री, जय हिंद। Thank you very much, sir. Now I request Honorable Vice Chancellor, sir, to further take over with the proceedings of the ceremony. May I request Honorable Chancellor, sir, to please permit me to present the candidates. With the kind permission of Honorable Chancellor, total of 807 candidates are set out in the list and who have been examined and found qualified for degree and diploma programs in PhD, MBA, MCA, BTech, BA Mass Communication, BCA, BBA, BLib, BPharm, DPharm, B.Ed, BSc and MSc. I pray that they may be admitted to the degree or diploma. May I request Honorable Chancellor, sir, to admit these degrees and diploma programs in presence or absentia. Thank you, sir. The time has now come for which our dear students are waiting eagerly. I am actually talking about the awards for meritorious students. Today, during the e-convocation, there are 2 students who have qualified for the Chancellor's Gold Medal Award. Ladies and gentlemen, let's now begin with Chancellor's Gold Medal Award. The Chancellor's Gold Medal Award is a prestigious convocation award and is awarded to the academically best students in all the faculties. The winner would have the honor of receiving a gold medal and a certificate of merit. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to the first recipient of the Chancellor's Gold Medal Award, Mr. Manish Kumar from the Department of Mathematics, School of Basic Applied Sciences and Humanities. I would request the Honorable Chief Guest to please present this prestigious award to Mr. Manish Kumar. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to the second recipient of the Chancellor's Gold Medal Award. The recipient being an international student hailing from Nepal, Mr. Jitendra Kumar Kushwaha from the Department of Computer Science and Engineering. I would request the Honorable Chief Guest to please present this prestigious award to Mr. Jitendra Kumar Kushwaha. Thank you, sir. We take pride in announcing the Bina Memorial Gold Medal Awards in the memory of late Mrs. Bina Singh Ji, former Vice Chairperson Maharana Pratap Group of Institutions. This award is given to the best female student in the university in terms of academic performance. During the e-convocation today, there are 2 recipients of this prestigious award and both are physically present here in honor of our chief guest. I take the privilege to announce the first recipient of the Bina Memorial Gold Medal Award, Miss Supriya Kumari from the Department of Management. I would request the Honorable Chief Guest to please present this prestigious award to Miss Supriya Kumari. Thank you, sir. I take the privilege to announce the second recipient of the Bina Memorial Gold Medal Award, Miss Manisha from the Department of Chemistry, School of Basic Applied Sciences and Humanities. I would once again request the Honorable Chief Guest to please present this prestigious award to Miss Manisha. Thank you, sir. I take this opportunity to congratulate the students for their hard work in winning the awards. I am sure
that you would uphold the banner of the university and do your best in all future endeavors as responsible citizens of the country. I also wish to extend my heartiest congratulations to the parents of the students, without whose guidance their wards would not have seen the light of this day. Thank you, sir. Now I request all the degree and diploma recipients to please rise for the formal oath-taking ceremony. Now I again request all the degree and diploma recipients to please rise for the formal oath-taking ceremony. All the graduating students are requested to raise their right hand for the oath-taking ceremony. During the oath-taking ceremony, all those students who are recipient of degree today are requested to repeat each line just after the Honorable Chief Guest Sir speaks. Please, sir. to utilize my knowledge for the glory of the institute in the service of the country. Thank you, everyone. Please be seated. Now I again consider it a great honor to request our Honorable Chief Guest Sir to deliver the convocation address. सर प्लीज बोले इस दीक्षांत समारोह में हम सबके बीच में उपस्थित प्रताप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर महोदय सम्मानीय शैलेंद्र भदौरिया जी, हमारे प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर श्री अभय कुमार जी, डॉक्टर अभय कुमार जी, हमारे प्रताप यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी मैडम सुरभि भदौरिया जी, हमारे सभी प्रताप यूनिवर्सिटी के विद्वान फैकल्टी के मेंबर्स, हमारे आज डिग्री लेने वाले छात्र छात्राएं जो नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ मेरे साथ उपस्थित मेरे साथीगण, और वहाँ प्रताप यूनिवर्सिटी जयपुर में उनके ऑडिटोरियम में उपस्थित हमारे सभी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए विद्वान आपके इस दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन के कार्यक्रम में चौथा कॉन्वोकेशन, फोर्थ कॉन्वोकेशन, इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मौका मिला है, और आपने मुझे आज इस दीक्षांत समारोह में कुछ बोलने का भी और भाग लेने का सौभाग्य दिया। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आपके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया है।
आज हमारे विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, एक तरह से मानो तो शिक्षा की थ्योरी को समझने के बाद जीवन के प्रैक्टिकल अंदाज में उसको क्रियान्वित करने के लिए उतर रहे हैं। ये आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और मैं ये मानता हूं कि ये महत्वपूर्ण दिन भी है जब आप इस शिक्षा मंदिर से अपनी विद्वता का भंडार अपने साथ समेट करके जीवन के उसके क्रियान्वयन के लिए आप सब लोग अपने जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। इसके लिए मैं फिर से आप सबको हार्दिक बधाई भी देता हूं और अपनी ओर से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो जीवन में पाया है, जो शिक्षा पाई है, उसका आप भरपूर उपयोग करते हुए जीवन में इसको एक इंस्ट्रूमेंट, एक औजार बनाते हुए जीवन में एक सफल नागरिक, एक सामाजिक प्राणी के रूप में देश सेवा और विश्व की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे, ऐसा मेरी आशा ही नहीं है, मेरा विश्वास है जिसको आप सब लोग पूरा करेंगे। मित्रों, शिक्षा आज जब आपने ग्रहण की है, मुझे अभय जी जब रिपोर्ट रख रहे थे, हमारे कुलपति महोदय, तो मैं सुन रहा था कि किस तरीके से प्रताप विश्वविद्यालय ने महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर के इस विश्वविद्यालय को पिछले 25 साल में जिस तरीके से आगे बढ़ाया है और साथ ही साथ विद्यार्थियों को अनेकों आयाम के साथ जोड़ते हुए नए नए कोर्सेज में उनको डिप्लोमा, डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री, इन सभी डिग्रियों के साथ आपने उनको लैस किया है। इसके लिए जहां मैं विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, वहां मैं विश्वविद्यालय की फैकल्टी को साधुवाद देता हूं जिन्होंने अथक प्रयास के साथ इन बच्चों को गढ़ा है, इन बच्चों को जीवन में सामर्थ्यवान बनाया है और इन बच्चों को आगे चल करके अपने जीवन में कैसे खड़े हों इसके बारे में बताया है। मुझे बताया गया कि लगभग 800 डिग्रियां आज लोगों को डिजिटल माध्यम से मिली है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोगों के बीच में रहता और आपसे बातचीत भी करता, वार्तालाप भी करता, आपके चेहरों को पढ़ता, आपके चेहरों से पढ़ते हुए ये जान पाता कि किस तरीके से आप आकांक्षाओं के साथ, आकांक्षाओं से भरे हुए आप नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ये कोरोना के संक्रमण ने हम सब लोगों को एक तरीके से क्रिपल कर दिया है, हैंडीकैप कर दिया है कि मुझे वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। अच्छा होता अगर मैं आप सबके बीच में होता, लेकिन मैं शैलेंद्र जी और अभय जी को जरूर इस बात का विश्वास दिलाऊंगा कि जब कभी आप मुझे विश्वविद्यालय में बुलाएंगे, दीक्षांत में ना सही, सिर्फ आपके विश्वविद्यालय को देखने के लिए भी बुलाएंगे, तो भी मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि शिक्षा से मेरा गहरा नाता है और शिक्षा के मंदिर के माध्यम से जो देश सेवा हो रही है वो मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का कारण बनती है और वो मुझे प्रेरणा देती है। इसलिए मैं जरूर आज आपको भी बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और आगे जब भी मौका मिलेगा तो मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा। मित्रों, हम जब नौजवान होते हैं तो हमें अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है और होना भी चाहिए। इसलिए हमारा शब्द ज्यादातर हमेशा आई निकलता है। मैं होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं होता। मैं तभी होता है जब वो हमको पहचान लेता है और हम सबको पहचान लेता है। आज डिग्री आपके नाम है, आज पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके नाम है, डॉक्टरेट की डिग्री आपके नाम है, आज आपके अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपके नाम है। लेकिन इस डिग्री को प्राप्त करने में आपका योगदान है, पर आपका अकेला योगदान नहीं है। आज के दिन आप अपने माता पिता को भूल नहीं सकते हैं, जिन्होंने किस कष्ट में रह करके आपको ये अच्छी शिक्षा देने का काम किया है। आज आपको उनके प्रति अपना ऋण उतारना भी चाहिए
और उनसे आशीर्वाद भी लेना चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। आपके गुरुजनों ने, आपके विद्वान गुरुजनों ने जिस तरीके से आपको गढ़ा होगा, जिस तरीके से आपकी कमियों को निकाला होगा, जिस तरीके से उन्होंने आपको हौसला दिया होगा, जिस तरीके से आपके साथ खड़े रहे होंगे, आज उनको भी धन्यवाद देने का मौका है। ये मैं आप इसलिए बने हैं क्योंकि हम सब लोगों ने, यानी आपके विश्वविद्यालय के लोगों ने, सबने मिलकर के आपके उस प्राप्ति में अपना योगदान किया है। इसलिए उनके प्रति ऋणी रहना भी और धन्यवाद देना, उनसे स्वीकार करना, ये बहुत आवश्यक है। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ करता था तो मैं छात्र नेता भी था, और छात्र नेता होने के नाते हॉस्टल्स में देर से पहुंचता था, भोजन मेरा ठंडा हो जाता था, मेस बंद हो जाती थी। लेकिन मेस बॉय रात को 12 बजे उठ करके मेरे पास आता था, कहता था, डॉक्टर साहब, भाई साहब, आप कभी संकोच मत करना, आपका भोजन मैं गरम गरम आपको खिलाऊंगा, क्योंकि आप छात्र का काम भी करते हैं नेता के रूप में और पढ़ाई भी करते हैं, इसलिए कभी संकोच मत करना। और आज मैं अपने उस मेस बॉय को भूल नहीं सकता। वो अब उम्र दराज हो गया है, मेरा उससे अभी भी संपर्क है, लेकिन मेरी डिग्री हासिल होने में मेरी जीवन की कहानी अलग है। मैंने एक साथ लॉ किया था, अब कहां से किया था ये मैं इसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा, क्योंकि आपको शायद मैं वो प्रेरणा नहीं देना चाहता जिस प्रेरणा से मैं गुजरा हूं। लेकिन जब मैंने लॉ पास किया तो जो मुझे एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाते थे, किस प्रकार से वो मुझे परीक्षा में बैठाते थे, ये भी मुझे याद है। मैं उनको आज भूल नहीं सकता, क्योंकि किन विपरीत परिस्थितियों में मुझे छात्र नेता के रूप में काम करने का मौका मिला, ये मैं जानता हूं। मैं उनको भी नहीं भूल सकता जो मुझे सुबेरे 5 बजे गरम गरम कॉफी पिलाते थे और कहते थे, साहब आप चिंता मत करो, आपको दूसरा कप भी चाहिए होगा तो हम देंगे, लेकिन आप परीक्षा ठीक से दीजिए, इसकी हमको चिंता होती है। मित्रों, ये सब लोग हमारी जिंदगी में किस किस मोड़ में आकर के हमारी मदद करते हैं, जिसके कारण हम शिक्षित हुए, ये हमको समझना चाहिए। हमारे जो कपड़े धोया करते थे, यानी हमारे जो वॉशरमैन थे, जो हर सप्ताह आकर के हमसे कपड़े ले जाया करते थे, क्या उनका योगदान हमारी डिग्री हासिल होने में नहीं है, जो हमको अच्छे कपड़े पहना करके यूनिवर्सिटी में ले जाया करते थे? इसलिए मित्रों, मैं निकाल करके हम याद करो, समाज याद करो, सारा समाज लगता है तब जाकर के आपको ये डिग्री हासिल होती है। और उनके योगदान के लिए जब आप याद करते हो तो ये भी याद करना कि यह शिक्षा आपके लिए नहीं, यह शिक्षा उस समाज के लोगों के लिए है, उनके जीवन को बदलने के लिए है, उनके जीवन में खुशी लाने के लिए है, उनको हौसला देने के लिए है, और उनको खुशी प्राप्त हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। ये अगर आपने ज्ञान लेकर के आप इस यूनिवर्सिटी से जाएंगे, जिन प्रोफेसर्स ने दिन रात आपके लिए मेहनत की, ट्यूटोरियल्स लगाए, आपको पर्सनल अटेंशन दिया, जिन लोगों ने आपको हर तरीके से मदद करके आपके नर्वसनेस को उतारा है, हमें उनके प्रति ऋणी रहना चाहिए। और उनको, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी का विषय और कुछ नहीं होता, जब वो देखता है कि उसका छात्र कहीं आगे बढ़ गया है, देश में कहीं आगे बढ़ गया है, समाज में, तो उसको जितनी खुशी होती है उतनी किसी को नहीं होती। इसलिए उनको याद रखना ये हमारी जिम्मेवारी होती है, ये हमको समझना चाहिए। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा रटने रटाने की चीज नहीं है। हम सब लोग परीक्षा के पहले सारी चीजें मेमोराइज कर लेते हैं और यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में जाकर के, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उसको वॉमिट कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि वी आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रटने रटाने का जमाना चला गया, अब जमाना है एप्लीकेशन का, कॉन्सेप्ट्स का। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप जीवन के प्रैक्टिकल लाइफ में उतरे तो कभी भी आप मेमोरी से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर विश्वास करें और एप्लीकेबिलिटी पर विश्वास करें, और वह आप शिक्षा को समाज के लिए कैसे रेलेवेंट बना सकते हैं, इसकी चिंता करें। अगर आप ये करेंगे तो आपकी शिक्षा समाज के लिए उपयोगी होगी। अन्यथा वो जड़मूल जिसको कहते हैं कि फॉसिलाइज्ड हो जाएगी, उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं बनेगा,
वो फॉसिल बन जाएगा। उसका एप्लीकेशन हमेशा हमको याद रखना चाहिए, और एप्लीकेशन के लिए एप्टीट्यूड होना चाहिए, और एप्टीट्यूड के लिए मन में विचार होना चाहिए कि हम इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको रेलेवेंट बना सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी है। मित्रों, जब भी मैं शिक्षा के बारे में चर्चा करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि भारत विश्व गुरु रहा है। भारत ने दुनिया को शिक्षा दी है, और ये कहने के लिए मैं नहीं कह रहा, नालंदा तक्षशिला इसके उदाहरण है। ये विश्वविद्यालय का शब्द नालंदा के साथ तब से जुड़ा है, समय अनंत काल से जुड़ा हुआ है। नालंदा, तक्षशिला, इनके विश्वविद्यालय के नाम से हम जानते हैं। हमारे जो विदेशी इंडोनेशिया के, जकार्ता के, हमारे चाइना के, हमारे जापान के लोग यहां शिक्षा हासिल करने के लिए आते रहे, इसलिए यह एक एंशिएंट एजुकेशनल सेंटर रहा है। मैं बहुत से विश्वविद्यालयों के नाम गिना सकता हूं, पुरातन विश्वविद्यालयों के, जिनकी गरिमा स्थापित रही है, इतिहास उसका साक्षी रहा है। लेकिन आज कि जब तक मन, दिल, बुद्धि, आत्मा तीनों का मेल नहीं होता, शरीर का मेल नहीं होता, तब तक होलिस्टिक खुशी नहीं मिल सकती है। इसलिए होलिस्टिक विचारधारा रखने का भारत परंपरागत रहा है, और परंपरा के साथ हम लोगों ने इस होलिस्टिक व्यू पॉइंट को रखा है। इसको भी हमको समझना चाहिए, और इसको हमने आगे ला करके खड़ा किया है। मित्रों, हम सब लोग एक बात और भी कहना चाहूंगा। जब मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इट शुड ऑलवेज बी ब्लेंडेड विथ ट्रेडिशन, कल्चर, सिविलाइजेशन, द एंशिएंट नॉलेज, उसके साथ उसको ब्लेंड करना चाहिए। उसके बगैर वो कुछ नहीं है, वो मात्र एक, जिसको कहते हैं एक सब्सटेंस के रूप में एक इंफॉर्मेशन है आपके पास। लेकिन जब आप अपने नॉलेज को ट्रेडिशन के साथ, कल्चर के साथ, एंशिएंट नॉलेज के साथ, एंशिएंट एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ देते हैं तो वह रेलेवेंट बन जाती है, और रेलेवेंस के साथ साथ वो समाज के लिए उपयोगी बन जाती है। अब हम जब अपनी शिक्षा नीति की चर्चा करते हैं तो हम हमेशा ये नीति की चर्चा करते हैं कि इसके बारे में सोच कहां से पैदा हुई। जो हमारी शिक्षा नीति थी, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा दी गई। अब शिक्षा की बात करें और लॉर्ड मैकॉले की चर्चा ना करें, यह ठीक नहीं होगा। मैं लॉर्ड मैकॉले के ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखना चाहता हूं, जो लॉर्ड मैकॉले की ऑब्जर्वेशंस भारत के बारे में थी, और उसमें से जो शिक्षा नीति निकली होगी, जिसने हम लोगों को शिक्षित किया होगा, उसका क्या असर पड़ा होगा, उसको भी हमको समझना चाहिए। लॉर्ड मैकॉले ने अपने विचारों को जो शब्दों में रखा गया है, अब वो शब्द कहा जाता है कि लॉर्ड मैकॉले ने कहे, लेकिन उनका विचार तो वही था। उन्होंने कहा, I have traveled across the length and breadth of the country. I have not seen one person as a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such high caliber, that I do not think that we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is our spiritual, cultural heritage, and therefore it becomes our primary duty to address the educational issues. ये लॉर्ड मैकॉले का विचार था, और इस विचार के साथ साथ और क्या था, उसके विचार में यह भी था कि what we need in India is to produce a class which is Indian in blood, taste and intellect,
It is Indian in blood, but it should act as but it should have the intellect and taste and habits like an Englishman, and it should act as an interpreter between we the Britishers and the 1,000 Indian hungry masses over whom we rule. यानी इस उपनिवेशवाद से, इस साम्राज्यवाद से प्रेरित ग्रसित हमारी शिक्षा नीति को एक रूप देने का प्रयास हुआ था। आज हम बड़े धन्यवादी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगे आ रही है वो भारत के मूल धरती से जुड़ी हुई शिक्षा नीति है और सबका समावेश करके लगभग 2.5 से 3 लाख विचार सजेशंस लेने के बाद और उनको उन सजेशंस को इंप्लीमेंट करने के बाद ये नई शिक्षा नीति बनी है जिसको समाज के सभी वर्गों ने ठीक से माना भी है और उसको सराहा भी है, इसका स्वागत भी किया है। ये मैं शिक्षा नीति के बारे में आपको इसलिए कह रहा था कि हमारी शिक्षा नीति को भ्रमित करने का भी कुत्सित प्रयास इंग्लिश टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ और वह लंबे समय तक हमारे देश पर प्रभावी भी रहा। लेकिन हम अगर पुराने समय को याद करें और ज़ू ज़ैंग के विचारों को याद करें तो ज़ू ज़ैंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ के स्कॉलर से मुलाकात की, वहां हमको कुछ मॉन्क्स मिले जो श्रीलंका से भी संबंध रखते थे। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि मैं श्रीलंका भी जाना चाहूंगा। उन मॉन्क्स ने कहा कि यहाँ जो आपको प्राप्ति होगी वो कहीं प्राप्ति नहीं होगी, जो आपको ज्ञान लेना है वो यहाँ लीजिए। ये उस समय श्रीलंका के मॉन्क्स ने कहा, उनके लोगों ने कहा, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भारत की रीति नीति से जुड़ा हुआ और भारत को पहचानने वाला भारत का दर्शन, उसके आधारित शिक्षा नीति बनेगी तो ही उसका लाभ रहेगा। और उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट विच इज गोइंग टू चेंज द सोसाइटी इन कमिंग टाइम्स। इस बात को भी रखा है। मित्रों, जो नई शिक्षा नीति जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसका अंतर क्या है, जिससे आपने भी ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, आप वंचित रहे हैं, हम भी वंचित रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ उठाएंगी। वो क्या है? वो है पहला स्ट्रेस है अफोर्डेबिलिटी, यानी सबको शिक्षा मिल सके, सब अफोर्ड कर सके, सबके लिए शिक्षा प्राप्त होने की व्यवस्था होना, ये पहला कमिटमेंट है। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, हर को शिक्षा मिलने में एक्सेसिबल हो, वह उस शिक्षा को ग्रहण कर सके, उसको इक्वल भाव से उसको ये मौका मिल सके। सिर्फ ये बड़े लोगों की ही शिक्षा का व्यवस्था ना हो, सामान्य व्यक्ति भी एक्सेसिबल हो, उसको शिक्षा, इस बात का जोर दिया गया। तीसरी बात है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति मैथमेटिक्स के साथ साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है, एक व्यक्ति बायोलॉजी के साथ साथ फाइन आर्ट्स भी ले सकता है, एक व्यक्ति हमारे कॉमर्स के साथ और कॉमर्स के साथ कॉस्ट अकाउंटेंसी के साथ वो कहीं आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, सोशल साइंस भी ले सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम इस नई शिक्षा नीति ने करने का प्रयास किया है। और दूसरा, एग्जामिनेशन सिस्टम में हमेशा एनालिटिकल कर्व क्या है और एनालिटिकल माइंड कितना बनता है, इस पर जोर दिया गया है, न कि मेमोराइज करके वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग ना हो। हम लोगों ने कोशिश की है कि कंसेप्चुअली बच्चा कैसे स्ट्रांग हो सकता है, इसकी चिंता की गई है। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कैसे उसका एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगता है, कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होते हैं, ये नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाई की भाषा 5वीं क्लास तक मातृभाषा रहेगी, ताकि बच्चा बिल्कुल अपनी भाषा में, जो वो घर में भाषा बोलता है, उस भाषा में शिक्षा ग्रहण कर ले और ताकि उसका बेस स्ट्रांग हो सके। इस बात की चिंता इस शिक्षा नीति में की गई है। मित्रों, ये स्वागत योग्य है। अब शिक्षा नीति में व्हाट टू थिंक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाउ टू थिंक, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग, how to develop the methodology of thinking so that you reach to the right position or you reach to the right assessment, ये इसमें से निकलने की बात है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आजाद भारत में मोदी जी ने
लंबे समय बाद जो ये शिक्षा नीति 1986 के बाद ये शिक्षा नीति 2020 में आई है और ये शिक्षा नीति लाखों सजेशंस को लेकर के आई है, करोड़ों लोगों से के समावेश के साथ आई है और हजारों में सजेशंस को मानने के बाद आई है। इसको हमको समझना चाहिए और इसको इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमको पढ़ाई को मोर इफेक्टिव कैसे बनाया जा सके इसकी हमको कोशिश करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। आज इस दीक्षांत समारोह में हम सब लोग यहाँ पर आए, आपने मुझे आने का मौका दिया। जब हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, राजस्थान की धरती को मैं नमन करता हूं कि ऐसे महाराणा प्रताप जिन्होंने भारत के करोड़ों लोगों को एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति और एक नई कमिटमेंट और इस देश की रक्षा के साथ साथ देश का स्वाभिमान जगाने का काम किया है। ऐसी यूनिवर्सिटी के नाम पर जब आपने इतना अच्छा काम लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाखों विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे करके समाज के लिए उपयोगी बनाएंगे और हम बच्चे जो आज डिग्रियां हासिल कर रहे हैं उनसे मैं ये पूरा विश्वास रखता हूं कि वह अपने जीवन में महाराणा प्रताप से लेकर के सभी लोगों की प्रेरणाओं को लेकर के जो उन्होंने शिक्षा हासिल की है वो समाज के लिए उपयोगी कैसे हो इसकी जरूर चिंता करेंगे, ताकि आपकी शिक्षा समाज के काम आ सके, अपने सहयोगियों के काम आ सके, देश के काम आ सके और आप देश के लिए एक उपयोगी इंस्ट्रूमेंट बन सकें, यही मैं कामना करता हूं। आप सब लोगों ने इस कॉन्वोकेशन में भाग लिया है। अंत में एक बात और कहूंगा कि हम सब लोग बहुत करियरिस्ट हो जाते हैं और करियरिस्ट होने के नाते उसको टारगेट बना लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दुनिया बहुत बड़ी है, सबके लिए सब कुछ रचा हुआ है। यू आर डेस्टिन्ड टू डू द बेस्ट, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस। कभी भी डर करके, भीरू होकर के जीवन में मत उतरना, हमेशा बुलंदी के साथ उतरना, पूरी ताकत के साथ उतरना। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे हाथों में आगे बढ़ने की ताकत है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में उतरिए और मन से व्हाट यू थिंक इज करेक्ट अपना जीवन उस बात के लिए लगा दीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आयोजकों ने मुझे बुलाने का जो मुझे सौभाग्य दिया इसके लिए आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, sir. We are honored to have you with us during the e-convocation today. Now I would request Mr. Shailendra Chauhan, Assistant Professor in the Department of Management, and Mr. Trilok Rawat, Senior Manager IT, to present the memento to Honorable Chief Guest, sir. May I now request and invite Mrs. Surbhi Bhadoria ji, Secretary and Trustee of Pratap University, to propose the vote of thanks. Please, ma'am. Honorable Shri J.P. Nadda ji, National President, Bharatiya Janata Party, Chairman Pratap University, Mr. Shailendra Bhadoria, Professor Abhay Kumar, Vice Chancellor Pratap University, distinguished guests, media, and my dear students. Today is a celebration of all good that our student teachers have all come together along with the university. It is a wonderful to look, observe you all among with us, having the positive energy and celebrating the 4th convocation of Pratap University. I proudly congratulate each of you and congratulate heartily all parents whose students have been felicitated today with the various medals and who have been felicitated with the respective degrees. Thank you for coming to our convocation ceremony. Seeing you all here today is a testament to the achievements of our graduates and the love and the support they have received over the years from staff, parents, and the whole university. Each of you have grown up in a way that you should be.
So I'm so proud of it, and now you are ready for transition into a new exciting chapter of your life. We endeavor to provide holistic education for our university community. It's not just about academic achievements, as we were told by our chief guest, Shri Nadda ji, but rather embracing all the various opportunities that come our way. Last but not the least, I would like to give a special thanks to all my staff members who have managed, and the various social media platforms who have enabled this event to be a successful one. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much, ma'am. Now I request Honorable Vice Chancellor Sir for closing ceremony. Honorable Chief Guest and Honorable Chancellor Sir, may I, with your permission, declare the convocation closed? With the permission of the Honorable Chief Guest and Honorable Chancellor Sir, I declare the convocation closed. Ladies and gentlemen, may I request all of you to rise for the national anthem. Satish sir.